have with us today to celebrate Women's Day, the fastest and the first woman to run from Kashmir to Kanyakumari, right? Yes. How was that? Before I go into more questions, Yes. how was that for you? That's like crazy running. Actually, it is not just about all about world record or being first and fastest. Actually, there is a mission with me, mission for hope. And when I started running, I thought that running could be a good way to spread your message. Anything you want to share with the people, you want to explore real India, and I think running is the best way. So that's why I chose this path, and I decided to do Kashmir to Kanyakumari. And that journey, it's like a memorable journey for me because I got a chance to connect thousands of people, non-runner, runner, and I got a chance to spread my message, which I wanted to spread all over India. And also got a chance to explore real India, what is all about India. So it's very nice to see this whole patch, Kashmir to Kanyakumari. But tell me, Sufia, what motivated you to run? Were you always a runner? No. I started running, it's been 3 years. Only 3 years. That's it? That's it. Oh, wow. So what sort of motivated you to get into running? Actually, I worked with the aviation industry. I was at Air India, and I worked the aviation industry for 10 years. Yes, at IG Airport, Indira Gandhi International Airport. I used to work there, and there is a time I was sitting in an office, and I was so frustrated because I worked almost in night shift for 10 years. And I thought that I should take care of my health, and there has to be something in life, because I was thinking that I'm running, I'm working like a machine. So that's why I started running, just for a fitness purpose, and it became passion now. That's great. So just 3 years back, I mean, you know, and I'm just thinking because as a child, I was never into any kind of athletics, any kind of sports. I mean, PT period was the most irritating period for me. मैं भागती थी दूर, है ना? And after a certain point, I'm also asking this question, you know, being a woman, as girls, we are told, or at least I was indirectly told, कि अच्छा अब now you've grown up, अब ये भाग दौड़ छोड़ दो. Okay. You know, and that is what I did. So I still run away from running. But you know, did you come across anything like this? Was becoming physically active? रनिंग तो अभी 3 साल पहले ही स्टार्ट हुआ था, और मैंने कभी भी नहीं सोचा था लाइफ में, जैसे होता है ना कि चाइल्डहुड आपका एक सपना होता है कि बड़े होके आप वो बनेंगे या वो करना चाहेंगे. तो मेरी लाइफ में जो चीजें हुई है वो ऑल ऑफ सडन हुई है, जो आप सोचते नहीं है वो हो जाता है. और रनिंग जब से आया है लाइफ पे, जब से स्टार्ट किया है, यू वोंट बिलीव, एवरीथिंग इज चेंज नाउ. सब कुछ चेंज हो गया. इट्स नॉट अबाउट ऑल अबाउट फिजिकल फिटनेस, बट ऑल्सो एक जो माइंड सेट होता है ना आपका, एक जो पीस ऑफ माइंड होता है, आपका पॉजिटिव माइंड होता है, वो बना. हर चीज को देखने का नजरिया बदला, लोगों को देखने का नजरिया बदला. एंड आई एम सो हैप्पी नाउ, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड कि जो भी मिला है लाइफ में वो बहुत है, और मैं बहुत खुश हूँ. तो मैं ये कहती हूँ कि एक बार चीजें स्टार्ट करके देखिए. इससे जरूरी नहीं है कि आपकी फिजिकल फिटनेस पे तो असर पड़ेगा ही, बट आपकी कहीं ना कहीं थिंकिंग भी चेंज होगी. ऐसी चीजें जब मैंने स्टार्ट की थी रनिंग, तो फैमिली में और जो सोसाइटी में लोग कह रहे थे कि पागल है लड़की, इससे क्या मिलेगा आपको, क्योंकि लोगों की अपनी अपनी थिंकिंग होती है. फैमिली कंसर्न थी हेल्थ को लेके कि जॉब छोड़ दिया, अभी फ्यूचर का क्या, अभी रनिंग ही करना है, हेल्थ का क्या होगा, कैसे इतना कर पाओगी, बिकॉज अभी आई थिंक किसी फीमेल ने इतना लॉन्ग रन नहीं किया कंट्री के अंदर. लेकिन जब ये है ना कि आप चीजें हासिल कर लेते हो ना, तो लोगों को समझ में आता है कि व्हाट यू आर डूइंग, आप जो करना चाह रहे हैं कि उसके पीछे पर्पस क्या है. अभी मैं जो कर रही हूँ वो आई थिंक मेरी फैमिली मुझसे ज्यादा खुश है. That's amazing. They're so proud. And I got a chance to go my hometown Ajmer in this quadrilateral.
एंड यू वोंट बिलीव इतना अच्छा वेलकम किया लोगों ने. माय मम्मा वाज फीलिंग सो प्राउड के लोग आ रहे हैं और बहुत ज्यादा अच्छे से वेलकम कर रहे हैं. तो टाइम लगता है चीजों को आई थिंक, बट आपको एक वो होता है ना कि आपको कदम उठाना पड़ता है. स्टार्टिंग में ये सब चीजें आपको झेलनी पड़ती है. हाँ, बट एक बार जब आप कदम बढ़ा लेते हैं और सक्सेस पा लेते हैं तो फिर समझ में आता है कि हाँ, आप जो लोगों को समझाना चाहते हैं उसको समझा पा रहे हैं. तो मेरा भी मिशन यही था. लोगों का सवाल था कि रनिंग से आप कैसे ह्यूमैनिटी, पीस, इक्वालिटी, ये सब चीजें कैसे. मेरा भी अगला सवाल होना था. हाँ. तो उस वक्त मेरे पास जवाब नहीं था क्योंकि मैंने मिशन स्टार्ट नहीं किया था, एक्सपीडिशन स्टार्ट नहीं किया था. लेकिन जब एक्सपीडिशन स्टार्ट किया मुझे मौका मिला लोगों तक पहुंचने का. और मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पे कि जरूरी नहीं कि लाइफ में आप पैसों से ही किसी की लाइफ चेंज कर सकते हैं या किसी की हेल्प कर सकते हैं. अगर अपनी थिंकिंग से, अपनी पॉजिटिविटी से आप किसी इंसान की जिंदगी चेंज कर दें तो आई थिंक वो ह्यूमैनिटी है. किसी की सोच को बदल दें, किसी के फेस पे खुशी ला दें, तो वो ह्यूमैनिटी है. तो अभी मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मैंने रनिंग के थ्रू काफी लोगों से कनेक्ट किया, काफी लोगों को रनिंग करवाया और अपनी जो मैसेज है लोगों तक पहुंचाया कि मैं क्यों रन कर रही हूँ और क्यों जरूरत है. अभी ये जो मॉरल वैल्यूज है, आजकल के जो माहौल चल रहा है अभी कंट्री के अंदर, बहुत ज्यादा जरूरत है मॉरल वैल्यूज को ऊपर उठाने की. तो इसलिए जगह जगह जाके हम अपना यही मैसेज दे रहे हैं कि ह्यूमैनिटी इज अ बिग रिलीजन. आप कुछ मत फॉलो करो, आप ह्यूमैनिटी को फॉलो करो. दैट्स इट. उससे रिलेटेड मैं आपसे सिर्फ एक ये सवाल पूछना चाह रहा था कि हमने देखा कि सीआरपीएफ के लोग आपके साथ दौड़ रहे हैं, आंध्रा पुलिस आपको कुछ गिफ्ट कर रहा है, वाटरमेलन गिफ्ट कर रहा है, या बहुत अच्छी जगह बच्चे दौड़ रहे हैं, महिलाएं दौड़ रही हैं. आपको लगा कि लोग उस मैसेज को समझ पा रहे हैं जो आप मैसेज देना चाह रहे थे उनको? बिल्कुल बिल्कुल. एक्चुअली इस जो एक्सपीडिशन है और इस रनिंग की खासियत ही यही है कि इसमें सिर्फ रनर्स ही नहीं जुड़ रहे हैं. हाँ. जो लोग रनिंग नहीं करते हैं वो लोग भी और दूर दूर से आ रहे हैं. जब पता लगता है ना कि कोई बंदा साइकिल 100 किलोमीटर चला के सिर्फ मुझे ज्वाइन करने आया है, क्योंकि लगभग सभी फॉलो कर रहे हैं. और फिर जब हम रन करते हैं, कोई व्हीकल स्टॉप करके पूछता है तो हम सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज व्हाई आई एम रनिंग एंड व्हाट इज ऑल अबाउट. कि ये मिशन है, ये एक्सपीडिशन है, इट इज नॉट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ओनली. एक मिशन के साथ चल रहे हैं और जो भी हमें मिलता है उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों जरूरत है अभी और मैं क्यों रन कर रही हूँ. सद्भावना की क्यों जरूरत है. जी जी. तो आई थिंक लोग इसलिए कनेक्ट हो पा रहे हैं रन से और उनको अच्छा लगता है कि साथ में वो दौड़ते हैं, इस मिशन का पार्ट बनते हैं. You know, there's another thing that I read somewhere. You know, we met for the first time, and I wanted to know a little bit more about you before I start talking to you. So I read somewhere कि I think in your run from Kashmir to Kanyakumari, I mean, correct me if I'm wrong, तब you also कुछ lung collapse कर गया था, and then you had to be admitted. Yes. Tell me a little more about that. Actually, when I was doing Kashmir to Kanyakumari and I entered in Jalandhar, I was in Jalandhar, and that time my one lung got collapsed due to heavy pollution. Body में इतना pollution चला गया था. Actually कश्मीर का जो पूरा पैच था वो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ट्रक्स की धूल थी. उस वक्त बिल्कुल पता नहीं लग रहा था कि बॉडी में चल क्या रहा है. लेकिन जब जलंधर में आके मैं बिल्कुल बेहोश हो गई तो हॉस्पिटल में जाके पता लगा कि मेरा एक लंग कोलैप हो गया है. गल ब्लैडर 12 हो गए हैं, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया था अंदर. तो आई वाज लाइक कि अब क्या होगा, क्योंकि डेली रिपोर्ट्स आने लग गई थी. रिपोर्ट्स में कुछ ना कुछ आता था कि अभी ये है. बट कहते ना कि जब आप एक लाइफ में नेक इरादा लेके चलते हैं या निकलते हैं तो ऊपर वाले जरिए अपने आप भेज देता है. मेरे साथ भी हुआ कि हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि शी वाज अ रनर. एक्चुअली वो मुझे ज्वाइन करने वाली थी जलंधर में और मैं उन्हीं के हॉस्पिटल में गई. तो शी सेड कि गिव मी ओनली 4 और 5 डेज. मुझे पता है कि तुम मिशन पे हो और मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी. मुझे सिर्फ 4 और 5 डेज दो. मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें अपने पैरों पे दोबारा खड़ा कर सकूं. एंड मैं बता दूं, शी इज लाइक अ एंजल फॉर मी. उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक्स दिया. दिन में कम से कम 5 से 6 ड्रिप चढ़ा करता था एंटीबायोटिक. और मेरी हालत ऐसी थी कि मैं पैरों पे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी. बट ये होता है ना कि माइंड का स्ट्रांग होना. इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो ये एक्सपीडिशंस होते हैं, ये लॉन्ग रनिंग होती है, उसमें माइंड स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. अगर आपका माइंड स्ट्रांग है तो आप बड़ी से बड़ी जंग जीत जाएंगे. मेरे साथ भी वही था.
और लोगों की इतनी उम्मीदें थी कि सूफिया कब उठेगी, कब रन स्टार्ट करेगी, क्योंकि इतना मुश्किल पैच मैं ऑलरेडी पूरा कर चुकी थी। इसलिए तैयार किया मुझे डॉक्टर ने, और मेरे माइंड ने विकास जी का साथ हमेशा की तरह था, तो अपने आप को प्रिपेयर किया। बेड से उठते ही फिर मैंने 44 किलोमीटर रन किया। आई थिंक इट वाज 5th डे। Can you imagine 44 किलोमीटर रन किया है after having a collapsed lung? I used to run with कैनुला लगा रहता था हाथ के ऊपर, एंड डॉक्टर मुझे बाहर लेके जाती थी कि ट्राई करो कि थोड़ा रन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो वो जो डेज थे मेरे, वो अभी भी मैं नहीं भूल सकती। उसका हर एक दिन मुझे हॉस्पिटल में गुजारा हुआ याद है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस था सारे, और उसी एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया लाइफ में। तो अभी थोड़ा सा, अभी आप एक सद्भावना रन पे निकली हैं, और अभी मुझे अरुण बता रहे थे आप शायद उड़ीसा पहुंची हैं आज। जी। तो उड़ीसा आज पहुंच गई। अभी तक क्या एक्सपीरियंस रहा? व्हाट हैज बीन द हाईलाइट ऑफ दिस रन टिल नाउ? कहां से कहां पहुंचे आप? जर्नी का हर एक दिन जो है वो हाईलाइट ही है, क्योंकि हर एक दिन नई जगह है, हर एक दिन नए लोगों से मिलते हैं, हर एक दिन नई चीजें देखते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि लोग जुड़ रहे हैं। हम लोगों को बता रहे हैं कि व्हाई वी आर रनिंग, हम सद्भावना के लिए रन कर रहे हैं, हम होप के लिए रन कर रहे हैं। तो लोग जो है इमोशनली अटैच हो रहे हैं उसको। मैं ये देख पा रही हूँ कि लोग इस मिशन से बहुत इमोशनली अटैच होके करने आ जाते हैं, सपोर्ट करने आ जाते हैं, रन करने आ जाते हैं। और अभी तक का सफर बहुत अच्छा रहा। जहाँ जिस सिटी से निकले, स्कूल के बच्चे भी जुड़े साथ में, बड़े लोग भी जुड़े, तो हर जितने भी एज कैटेगरी है, सारी एज कैटेगरी आ जाती है ज्वाइन करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। यस। बट मुझे बात बताइए, बच्चों को ये समझ आता है कि हम क्यों भाग रहे हैं और ये मिशन है? डू दे अंडरस्टैंड दैट? बिल्कुल। और बच्चे जैसे किसी को स्कूल में इनवाइट करता है, या अभी हमें रास्ते में कोई दिखता है, तो बच्चे, मैं आपको बताऊं, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि बच्चे रुक के पूछते हैं। अभी जैसे स्कूल की, अभी हम ये परसों की ही बात है, जब आंध्र प्रदेश से यहाँ एंटर कर रहे थे, तो स्कूल की बच्चियां खड़ी हुई थी, एंड वो दे वर कीन टू नो कि व्हाई शी इज रनिंग, वो क्या कर रही हैं। तो इस तरीके से एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे जा रहे हैं अभी तक, कि बच्चे भी पूछते हैं और वो देखते हैं और मोटिवेट होते हैं उसको देख के। मुझे एक बात बताइए, जैसे अब ये मिशन है, अब मिशन के बाद व्हाट विल योर लाइफ लुक लाइक? व्हाट विल योर डेली रूटीन बी लाइक? I'll prepare myself for my next expedition, for next challenge. What will next challenge be? मुझे ये भी बता दो। 6000 किलोमीटर you're running. Me and Vikas, we are planning for around the world. Oh my god! Wow! In 2023, तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जो है वसुधैव कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, इस थिंकिंग को लेके, इस थॉट को लेके, और ये बहुत अच्छी थॉट है कि बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए लाइफ में लोगों के बीच में। और इसी एक कोट को लेके मैं ये रन करना चाहती हूँ पूरे वर्ल्ड के अंदर, और एक वर्ल्ड टूर भी हो जाएगा ऑन फुट। This is amazing. Yes. I'm just amazed. मैं भूल गई हूँ मेरा अगला सवाल क्या था। I'm like wow, imagine a trip around the world. So let's see अभी वो कहाँ तक होगा, but definitely we'll do it. That's amazing. So okay, Sophia, tell me one more thing. If you had to give a message to, well, if you had to give two separate messages, one message to a middle-aged woman of today, of India, a woman who's busy with household chores, also handling her job, बच्चे भी देख रही हैं, एक वो कैटेगरी ऑफ वुमन, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? और एक यंग वुमेन who are say 15 or 16 years old, उन लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? सबसे पहले तो जो मिडिल एज वुमेन्स हैं जो बिजी रहती हैं, उनको मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि लाइफ में कम से कम 1 घंटा अपने लिए निकालें, 1 घंटा अपने आप को दें। क्योंकि एक बात बताऊं आपको, जो कोरोना आया है तब से लोग ज्यादा फिजिकल फिटनेस की तरफ जा रहे हैं, और उसने एक ये लेसन दिया है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा ना, तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ जाएंगे। तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए जरूरी है फिजिकल वर्कआउट। जरूरी नहीं है रनिंग, अगर आपको रनिंग पसंद नहीं, आप साइकिलिंग करें, आप योगा करें, मेडिटेशन करें। लाइफ में 1 घंटा अपने आप को जरूर दें,
क्योंकि हेल्थ इज प्रीशियस एंड हेल्थ इज वेल्थ. अगर हेल्थ होगी तो ही आप काम कर पाएंगे पॉजिटिविटी के साथ. एक तो होता है ना कि हम कोई जबरदस्ती आपसे काम करवा रहा है, हम काम कर रहे हैं घर का भी बाहर, या आप ऑफिस में बैठे हैं, तो एक तो ये होता है कि आप जबरदस्ती कोई काम करवा रहे हैं, जल्दी जल्दी करा, और वो भी थके हुए माइंड से या बेमन से. लेकिन अब वाकई में अगर आपको 1 घंटा अपने लिए देंगे, मेडिटेशन, योगा, रनिंग, कुछ भी करेंगे, तो आप वही काम पूरी पॉजिटिविटी के साथ और अच्छी तरीके से कर पाएंगे. तो मेरा यही मैसेज है कि अपने लिए टाइम निकालें, अपने लिए टाइम निकालना जरूरी है. हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें. और जो 16 इयर्स गर्ल्स हैं, जो यंग एज गर्ल हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि ये मत सोचिए कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते. आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक लड़का कर सकता है. दिल से डर को निकालें. Yeah, maybe more. Look at you. I don't know how many men can run so much. तो दिल से जो एक डर होता है ना कि एक तो हम उस सोसाइटी के अंदर हैं कि हमें ये बता दिया जाता है कि नहीं, अभी लड़कियां सेफ नहीं है, अभी आपका ये एक ऑरा है, ये बाउंड्री है आपकी. तो बाउंड्री नहीं होनी चाहिए. आप वो मत बताइए अपने, जो भी आपके घर के अंदर है उनको बाउंड्रीज मत बताइए. उनको जाने दीजिए जो करना चाह रहे हैं. विथ पॉजिटिव माइंड अपने ऊपर यकीन करें, और जो भी करना चाहते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ करें. आप लाइफ में जो भी कर रहे हैं उसके पीछे बेशक नेक इरादा होना जरूरी है. बिल्कुल. जो भी करने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी करें, नेक इरादा नेक इरादा होना जरूरी है. अपने ऊपर यकीन रखना जरूरी है. और बहुत जरूरी है पॉजिटिविटी का भी. जो जिस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं कंट्री के अंदर, बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंसान पॉजिटिव सोचे, अच्छा सोचे अपने लिए, दूसरों के लिए. तो सब लोगों को मेरा यही मैसेज है, सारी एजेस के लिए, कि ह्यूमैनिटी इज अ बिग रिलीजन. पीसफुल रहें, खुशी से रहें.